Christmas is a season not only of rejoicing but of reflection. Namaste and a very good morning to one and all. This year, the Christmas celebration is a bit different as we are not having our students with us due to the pandemic. But this doesn't mean that our enthusiasm and energy of celebrating this is less. So, for you all, this year we are celebrating it virtually, and I am extremely glad that I have got the opportunity to host the program. Students, we read in the Gospel of St. John chapter 3 verse 16. God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Today, we all are here to celebrate the birth of God's begotten Son, Jesus Christ. It is the time to cherish new hopes and prayers, peace, mercy, and love. So, let us join in the celebration as the teachers of Holy Cross have put the Christmas program. But before that, on behalf of this institution, I, Shubhanka Bhattacharya, cordially and respectfully welcome Sister Ajaya, Sister Renuka, Sister Madhu, Sister Clarita, Sister Callista, and the whole staff. Light brings with its brightness and removes the darkness. As we light the candle, let's open our hearts to receive the light of Jesus. Now, may I request Sister Ajaya, Sister Renuka, Sister Madhu, Sister Clarita, and the teacher's representative, Mr. Preetham sir, to please come forward on stage and to light the lamp. Please, sisters. जलाकर राह दिखाओ, अंधियारा दूर करो। ज्योति जलाकर राह दिखाओ, अंधियारा दूर करो। ज्योति जलती रहे, आशीष मिलती रहे। A day without a prayer is a day without blessing, and a life without a prayer is a life without power. So, ladies and gentlemen, I would like to call Mrs. Shushma and Mr. Lawrence on stage to offer prayers before Lord. Please, teachers. आइए सुंदर वक्त में हम अपने आंखों को बंद करें। संत लूकास अध्याय 1 पद संख्या 14 में प्रभु का वचन कहता है, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी। हे प्यारे यीशु, हम आपके जन्म द्वारा विशेष अनुग्रह एवं आशीष मांगते हैं। प्रभु, आपके जन्म से प्रेम, शांति, न्याय, उदारता जैसे सद्गुणों का संचार होता है। प्रभु, आपका जन्म इसलिए हुआ कि हमें पापों से छुटकारा मिल पाए। प्रभु, हमारे दिल में आपका जन्म हो। प्रभु, आपके जन्म पर हम विशेष रूप से हमारे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारा विश्व कोरोना जैसे महामारी से गुजर रहा है। प्रभु, इस महामारी के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई है। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं।
इस कोरोना के कारण प्रभु कई लोगों की व्यवसाय चल रही है, कई लोगों को आधी वेतन मिल रही है, परिवार में आर्थिक तंगी का दौर छा गया है। लोग डर डर के अपने व्यवसाय में जा रहे हैं, अपने घर के बुजुर्गों को एवं छोटे बच्चों को घर से निकलने नहीं दे रहे हैं। प्रभु आपका वचन कहता है आपके लिए सब कुछ संभव है। यह महामारी को प्रभु आप पूर्ण रूप से नष्ट कर दें, ताकि हम इस नूतन वर्ष में प्रभु बिना डर के आनंद के साथ खुशी खुशी आपके वचनों के अनुसार अपना जीवन पा पाए। प्रभु समस्त मानव जाति को भी हम समर्पित करते हैं कि हम एकजुट होकर बड़े भाईचारे के साथ प्रभु हम एक दूसरों की सेवा भाव कर पाएं। यही हम आपके जन्म के अवसर पर मांगते हैं। आमीन। A very warm welcome and good morning to all. Let us all together pray. O sweet child of Bethlehem, grant that we may share with all our hearts in this profound mystery of Christmas. Put into the hearts of man and woman this peace for which they sometimes seek so desperately and which you alone can give to them. O child Jesus, help them to know one another better and to live as brothers and sisters, children of the same Father. Reveal to them also your beauty, holiness, and purity. Awaken, O Lord, in their hearts love and gratitude for your infinite goodness. O Lord, join them all together in your love and give us your heavenly peace. God, our loving Father and Creator, we offer you this humble prayer on Christmas Day. We come to worship with a song of thanks in our hearts, a song of redemption, a song of hope and renewal. O Lord Jesus, O baby Jesus, we pray for joy in our hearts, hope in our God's love to forgive each and everyone, and peace upon the earth. We ask for the salvation of our family members and friends, and we pray your blessings on all people. May there be bread for the hungry, love for the unlovable, healing for the sick, protection for our children, and wisdom for all the youth. O baby Jesus, we pray for the forgiveness of sinners and abundant life in Christ. Holy Spirit, fill our hearts with your love and power. In the name of Jesus, we pray. Amen.
soulful performance. Thank you, teachers. Christmas is all about celebration. So now is the time to play and make a good cheer, because Christmas comes once in a year. So a big round of applause for the Nightingales of Holy Cross. आनंद का संदेश, बड़े आनंद का संदेश, आनंद का संदेश, बड़े आनंद का संदेश, सुनाने देवदूत अब आते हैं। ईश पिता ने स्वर्ग से भेजा, हमें देश विदेश के लोगों, हमें देश विदेश के लोगों ने दाऊद के नगर में, आज बेतलहम में, दाऊद के नगर में, आज बेतलहम में मुक्तिदाता जन्मा है, जन्मा है, जन्मा है, प्रभु यीशु जन्मा है, जन्मा है, जन्मा है, प्रभु यीशु जन्मा है। दिल महलों में उसे देखो ना तुम, मंजिल महलों में उसे देखो ना तुम, गौशाले में देखा ईश्वर बेटा, साथ उसी के मरियम जोसे, दूतों ने गाया गीत मधुर, दूतों ने गाया गीत मधुर, दाऊद के नगर में, आज बेतलहम में, दाऊद के नगर में, आज बेतलहम में मुक्तिदाता जन्मा है, जन्मा है, जन्मा है, प्रभु यीशु जन्मा है, जन्मा है, जन्मा है, प्रभु यीशु जन्मा है। जाग उठे चरवाहे, देखे उस तारे को, जाग उठे चरवाहे, देखे उस तारे को, ये चढ़ाए थे प्रभु यीशु को, शीश झुकाए आशीष पाए, संग दूतों के वे गाए लगी, संग दूतों के वे गाए लगी, दाऊद के नगर में,
जन्मा है प्रभु यीशु जन्मा है जन्मा है प्रभु यीशु जन्मा है प्रभु यीशु जन्मा है प्रभु यीशु जन्मा है The best way to spread Christmas cheer is singing loud for all to hear. So here, once again, we are here. Mary's boy child, Jesus Christ was born
What an energetic performance. Extremely good. May the remembrance and celebration of the birth of the Lord brings us hope and give us the courage to continue serving all, especially the poor in our world. I think Christmas is about celebration. And come on, in the inside, everyone wants to dance. So, come on teachers, dance from your heart and love the music, and the viewers will love you in return. बाद देखा रे बड़ा दिल आए गल करे बड़ी दिन बाद देखा रे खुश पर आए गल करे Wow, what a wonderful performance. Well, yesterday I received a message. It was related to Christmas only, which I think I must share with you all. The message was relating had a conversation between Santa and Jesus.
So first Jesus asked to Santa that, "Hey Santa, you are lucky every Christmas." So Santa said, "But why? I am the one giving gifts, not receiving." So Jesus said, "Because I am the one celebrating my birthday, but people are looking for you, not for me." So guys, I have shared this message with a moral that we must not forget that we are celebrating the Christmas not just for gifts, foods or for parties, but also for Jesus' coming. Now, may I request Sister Claretta to please come on stage and share few words with everyone. Please, Sister. Dear sisters, parents, teachers, students, and all the well-wishers. Christmas with music and decorations, sparkling lights and stars, greetings and cakes, Santa Claus and gifts is always a season of joy, of peace, of sharing, of caring, and of giving. Much more than this, Christmas is the time to experience God's love for all. The truth that God out of love was born as simple, dependent, voiceless, and vulnerable child is the greatest joy than all the external celebrations. What about Christmas this year? What catches our attention today is not Santa Claus with gifts, but people affected by corona or floods or cyclone asking for help, something to eat, some place to stay for a while, some kitchen provisions, and of course, a generous and love-filled attitude. Jesus, who took birth as a human being and who spoke a human language, who experienced every human emotion and experience, is an example for all today to understand and be empathetic towards all those who silently whimper. Amidst pain and discomforts, we all, by our kindness and attitude of sharing, can surely make this Christmas a time of joy and of peace. Like Jesus, let us enter into the lives of all the needy and be empathetic. Like Santa Claus, let us give love and affection to all. Remember, we all have a part to play for this Christmas. On this occasion, I take this opportunity to thank all my dear parents for your kind cooperation and support. And all my dear teachers, thank you for being the pillar of this institution. Once again, I wish you all a Merry Christmas and grace-filled, prosperous New Year 2021. May God bless you all. Thank you so much, sister, for your valuable words. All the world is a stage. All the men and women merely players. They have their exits and their entrances. And one man in his time plays many parts. Yes, you guessed right. It's time for the Christmas act. So please welcome the performers. ये उन दिनों की बात है जब दुनिया में पाप अपनी चरम सीमा पर था। हर जगह लालच, क्रोध, नशा, व्यभिचार व अशांति फैली हुई थी। सच कहे तो इंसान न होकर जानवर बन गया था। इन सब से मुक्ति दिलाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी प्रभु यीशु के रूप में एक मुक्तिदाता संसार में आए, जिन्होंने मनुष्य को प्रेम, शांति, दया, क्षमा का गुण सिखाया। आइए यह सब हम एक लघु नाटिका के रूप में देखें।
राज्य को कोई हिला नहीं सकता। हे मालिक, मालिक हम बर्बाद हो गए। क्या तुम क्या कह रहे हो? हम बर्बाद हो गए हैं? दुनिया का मुक्तिदाता जन्म लेने वाला है मालिक। क्या यीशु मसीह इंसान के रूप में जन्म लेने वाला है? हे मालिक, यीशु मसीह आएगा तो मनुष्यों को पापों से छुड़ाकर उसे पवित्र कर देगा और मानव जाति को शांति भी देगा। हे शैतान के बच्चे, बक बक मत कर। इस लैपटॉप में देखकर बता, यीशु मसीह कहाँ जन्म लेने वाला है? मालिक, लैपटॉप में टावर नहीं आ रहा। मालिक, मरियम द्वारा यीशु का जन्म होने वाला है। यूसुफ से उसकी मंगनी हुई है। हे शैतान के बच्चों, जाओ और यूसुफ के मन में मरियम के बारे में गलत विचार डालो। स्वर्गदूत माता मरियम के पास प्रभु यीशु के जन्म का संदेश लेकर जाता है। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। प्रभु आपके साथ। मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगे। वे महान होंगे और सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यह कैसे हो सकता है? मेरा तो किसी पुरुष से संसर्ग नहीं हुआ है। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ। आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। मरियम की मंगनी यूसुफ से होती है, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने के पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उनका पति यूसुफ उन्हें चुपके से परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए उन्हें दिखाई दिया। यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी, उनका नाम ईसा रखा जाएगा, जो मनुष्यों को पापों से मुक्त करेगा। मालिक, हम बर्बाद हो गए। हे शैतान के बच्चे, कभी भी तुम अच्छा समाचार लेकर नहीं आते हो। मालिक, यूसुफ ने स्वर्गदूत की बात मानकर मरियम को अपनाया है। यीशु जन्म लेने वाला है, हमें नरक में भेजकर लोगों को बचाने वाला है। शैतान के बच्चों, कोई और विचार हो तो बता दो। हे मालिक, यदि यूसुफ को जगह नहीं मिली तो यीशु का जन्म नहीं होगा। सुपर आइडिया है। हे शैतान के बच्चों, जाओ और देखो कि कोई भी यूसुफ को जगह नहीं देने पा रहा। जो हुक्म मालिक। यूसुफ अपनी गर्भवती पत्नी मरियम को लेकर बेतलहम जाता है, ताकि वह उस नगर में नाम लिखवा पाए और उसे रहने के लिए जगह मिल पाए। सुनिए, मेरी पत्नी का बच्चा होने वाला है। क्या हमें ठहरने के लिए कोई जगह मिलेगी? दरअसल यहाँ पे तो जनगणना में नाम लिखवाने का काम चल रहा है। यहाँ पे तो कोई जगह नहीं है। देखिए ना, थोड़ी जगह मिल सकती है क्या? अरे मैंने बोला ना, यहाँ पे कोई जगह नहीं है। जाइए यहाँ से।
और इस प्रकार यूसुफ को रहने के लिए स्थान नहीं मिला। वह अपनी पत्नी को लेकर जगह की तलाश में दर दर भटकता है और तभी सुनिए, हमें ठहरने के लिए जगह चाहिए। मेरी पत्नी गर्भवती है और उसका प्रसव होने वाला है। हमारे यहाँ भी जगह तो नहीं है। हमारे गौशाले में जगह है, आप चाहें तो वहाँ रुक सकते हैं। जी शुक्रिया। इस प्रकार प्रभु यीशु का जन्म बेथलेहम के गौशाले में हुआ। मालिक, हम बर्बाद हो गए। प्रभु यीशु ने गौशाले में जन्म लिया है। अब हमें कोई नहीं बचा सकता, हमें नरक जाना ही पड़ेगा। मुंह बंद करो शैतान के बच्चों, अब सोचो आगे हमें क्या करना है। मालिक, हम राजा हेरोद के मन में हत्या करने वाले आत्मा को भेजेंगे। वह बच्चों को मार डालेगा और इस प्रकार बालक यीशु भी मारा जाएगा। बहुत अच्छा आइडिया है। जाओ, राजा हेरोद के मन में हत्या करने वाला आत्मा उधेल दो। राजा हेरोद का आगमन होता है। हे राजा हेरोद, हमें बताइए कि यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा है। हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। तीनों राजाओं की बात सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया कि कौन दूसरा राजा जन्म ले लिया है। मसीह कहाँ जन्म लेंगे? यहूदियों के बेथलेहम में महाराज। जाइए, बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे भी खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। तीनों राजा हेरोद की महल से निकलकर तारे का पीछा करते हुए उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु ने जन्म लिया है। उन्होंने भेंट के रूप में प्रभु यीशु को गंधरस, सोना, लुभान की भेंट चढ़ाई। तीनों राजाओं को स्वप्न में यह चेतावनी मिलती है कि वे राजा हेरोद के पास नहीं जाएं। इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले जाते हैं। परंतु इस बात की खबर राजा हेरोद के सैनिकों को मिल जाती है और वे इसकी सूचना देने के लिए राजा हेरोद के पास जाते हैं। हे राजा हेरोद, 3 राजाओं ने आपको धोखा दिया है। वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए हैं। जाओ, बेथलेहम और उसके आसपास के सभी बालकों को मरवा डालो जो 2 बरस या उससे भी छोटे हैं। जो आपकी आज्ञा महाराज। यूसुफ, यूसुफ, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश जाइए, क्योंकि राजा हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। यूसुफ उठा और बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चला गया। हे मालिक,
हम बर्बाद हो गए। यूसुफ, मरियम और यीशु बच गए। अब यीशु को कोई मार नहीं सकता। अब इंसान पापों से बच गए। यीशु के जन्म से उनके जीवन में प्रेम, शांति, आनंद, आशा सबका संचार हो। The kind of love that was so intently demonstrated at Christmas is truly amazing and life-changing. Really, hats off teachers. Now, concluding the program, I just want to say that Christmas is a season of joy, love and peace. So let's forget the pain, hatred, fear and worry and all the negative things that had happened this year. Not just for this day, but forever. It's time to move on, forever and a day. Wish you all a Merry Christmas.